اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا یہ سبق کہ قرآن کریم کے اندر کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ، ان کے اندر زیادہ تر الفاظ وہ تھے جو پیچھے آ چکے تھے، کچھ ہی نئے الفاظ تھے جس کی میننگ آپ کو یاد کرنی تھی۔ امید کہ آپ نے ان میننگ کو یاد کر لیا ہوگا، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے جو بار بار قرآن کریم میں استعمال ہوں گے، کبھی الگ استعمال ہوں گے، کبھی کسی لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوں گے، لیکن اس کا استعمال بار بار آئے گا، اس لیے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ قرآن کریم کے ندائیہ جملے، ندا کے معنی ہوتے ہیں بلانا، پکارنا۔ عربی میں بلانے اور پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں سب سے کامن ہے یا۔ ہمارے اردو میں بھی لوگوں کو یا کر کے یا فلاں، یا اللہ، یا محمد، یا علی، تو یا ندا ہے بلانے کے لیے۔ اور ایک لفظ ہے اللہم، اے ہم سب کے اللہ، اے میرے اللہ۔ یہ لفظ کی تشریح بار بار ہو چکی ہے۔ رب، میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل میں ربی ہے، یہاں پر پڑھتے وقت یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ زیر ہی رہ جاتا ہے، تو رب مانے یہ ہے ربی، اے میرے پروردگار۔ رب مانے پالنے والا، پروردگار۔ ربنا، بتایا تھا میں نے کہ اس میں نا الگ ہے، ربنا اے ہمارے رب۔ اور یا ایہا مانے اے، یا ایہا مانے اے، یہ لفظ بار بار آئے گا، جیسے یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا الرسول، اے رسول، اے پیغمبر، یا ایہا المزمل، اے کمبل لپیٹنے والے۔ تو یا ایہا جو ہے یہاں تک یہ ندا کے لیے ہے، پکارنے، اس کے معنی اے۔ اسی طریقے سے یا ایہا المدثر، مدثر مانے کپڑا اوڑھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزمل اور مدثر کے لقب سے پکارا۔ یا ابتی، جیسے ربی ہے، یا ابتی، یا تھا، یا مانے میرا، نہ مانے ہم سب کا، تو یہ یہاں پر بھی یا حذف ہو گئی شارٹ میں، یا ابتی، اے میرے باپ۔ بنیا، میں نے بتایا تھا کہ ابن مانے بیٹا، بنیا اس کی تصغیر ہے پیار سے، جیسے ہمارے ہاں اردو کے اندر پیار سے بیٹے کو بیٹوا، بیٹیا، گھر کو گھرودہ، چادر کو چدریا، اس طریقے کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں ان کو مصغر یا تصغیر کہا جاتا ہے۔ کسی لفظ کو پیار سے جب چھوٹا کر کے بولا جائے تو اس کو عربی میں مصغر کرنا یا تصغیر کہا جاتا ہے۔ تو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ابن کو بنیا، بنت کی بنتیا۔ اسی طریقے سے اگلے الفاظ بھی ہیں، یا بنیا۔ دیکھو بنیا اور بنیا میں فرق یہ ہے کہ یا بنیا یہ واحد ہے اور یا بنیا یہ جمع ہے۔ اے میرے بیٹو، یہاں پر ہے اے میرے بیٹے، یا بنیا کا مطلب اے میرے بیٹے، واحد کے لیے، سنگل کے لیے، اور جمع کے لیے یا بنیا۔ یہ فرق یاد رہے، زبر زیر زبر اور پیش کا فرق ہے، بنیا واحد کے لیے، بنیا جمع کے لیے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، ابن سے بنی۔ یا ایہا الناسو، اے لوگو، ناس مانے لوگ، تو یا ایہا الناسو، اے لوگو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو۔ یا عبادی، اے میرے بندوں، عبد مانے بندہ، عباد اس کی جمع ہے، عبد مانے بندہ، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو یا ایہا مطلب اے، الذین مانے جو پیچھے آ چکا ہے، آمنو، آمنا ایمان لایا، آمنا آمنا آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یا ایہا الکافرون، اے کافرو، کافر کی جمع کافرون، جمع سالم ہے، اور جب اس پر زیر لگانا رہے گا یا زبر لگانا رہے گا تو یہ کافرین ہو جائے گا، یعنی کافرون یا کافرینے نہیں رہے گا۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے کافرونہ پہ جب زیر لگانا رہے گا تو یہ کافرینہ ہو جائے گا، اور پیش بھی لگانا رہے گا تو بھی کافرینہ ہو جائے گا، یہ ہم گرامر میں بتائیں گے۔ یا اولی الابصار، ابصار جمع بصر کی، بصر مانے آنکھ، اے آنکھ والو، یعنی اے سمجھدارو۔ اسی طریقے سے یا اولی الالباب، الباب جمع لبن کی، لبن مانے گدہ، مغز، عقل، اے عقل والو،
अलबाब जमा है लुब, लुब माने अक्ल, गूदा, किसी चीज़ का मग़ज़। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्युहा मुज़क्कर के लिए रहेगा और या अय्यतुहा मुअन्नस के लिए रहेगा। अरबी में यही एक चीज़ मुश्किल है, हर चीज़ का मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। तो या अय्युहा मुज़क्कर के लिए और या अय्यतुहा मुअन्नस के लिए। अन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली जान, मुतमइन इत्मीनान से है, मुतमइन्ना। अरबी का कायदा याद रखिए कि जब ये गोलता किसी के लफ्ज़ के आखिर में आएगी तो वो 99% केस में मुअन्नस ही रहेगा। कुछ केसेस में मुज़क्कर होता है, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन 99% केसेस में जिस इस्म के आखिर में ये गोलता आए वो मुअन्नस माना जाता है। नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली जान, मौसूफ सिफत है। नफ्स भी अरबी ज़बान में मुअन्नस माना जाएगा। तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, मुअन्नस के लिए। ये सबक भी पढ़ें थोड़ा। अब यहाँ से एक चीज़ है जो आपको याद करना। देखिए अरबी के अंदर एक मसला ये है कि वहाँ पर हर चीज़ में मैंने बताया कि मुज़क्कर और मुअन्नस का चक्कर है, एक मसला तो ये है। दूसरा मसला वहाँ पर ये आता है कि जैसे संस्कृत में आपने देखा होगा कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन बकिया ज़ुबानों के अंदर क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, यानी वाहिद और जमा, सिंगुलर एंड प्लुरल। लेकिन संस्कृत और अरबी के अंदर ख़ासियत ये है कि वहाँ पर सिंगुलर के लिए एक, दो के लिए तस्निया या मुसन्ना या द्विवचन, और दो से ज़्यादा को जमा कहा जाता है। बकिया ज़ुबानों के अंदर एक से ज़्यादा को जमा कह दिया जाता है। तो अरबी में एक चीज़ आएगी मुसन्ना या तस्निया। अब आप चीज़ एक और याद करिए कि आपको याद होगा कि पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या आप यूँ समझिए कि वाहिद, गायब, जमा, वाहिद, हाजिर और मुतकल्लिम। पर्सन्स 3 हैं, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। गायब का मतलब जिसके बारे में बात की जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। हाजिर जो सामने हो उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और जो बोलने वाला है उसको मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो इस तरीके से पर्सन तो 3 हो गए। अब फिर इन तीनों के अंदर आप हर एक का मुज़क्कर और मुअन्नस होगा, तो 3 दुनाएँ 6 हो गए, 6 हुए। चूँकि अरबी में 3 हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, तो फर्स्ट पर्सन के 3 में से मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे तो 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड पर्सन का मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे तो 3 दुनाएँ 6, और इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन में अगर करेंगे तो उसमें भी 6। तो कायदे के एतबार से कुल 18 फॉर्म्स इस तरीके से बन जाएंगे। लेकिन चूँकि फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस का चक्कर नहीं है, तो ज़मीर में, ज़मीर मतलब होता है प्रोनाउन, सर्वनाम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम, उर्दू में ज़मीर, अरबी में भी ज़मीर, फ़ारसी में भी ज़मीर, और इंग्लिश में प्रोनाउन। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर बोला जाए। अब यहाँ पर आप देखिए 6 सेगे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये हो गए गायब के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ तक हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये 6 हो गए थर्ड पर्सन। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 6 हो गए सेकंड पर्सन के लिए। और अना और नहनो हो गए फर्स्ट पर्सन के लिए। अब थर्ड पर्सन के अंदर जो पहले 3 हैं ये मुज़क्कर के लिए हो गए, हुआ, हुमा, हुम, और हिया, हुमा, हुन्ना, ये हो गए मुअन्नस के लिए। अब आइए सेकंड पर्सन में यानी हाजिर में, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये तीनों हो गए मुज़क्कर के लिए, और अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 3 हो गए मुअन्नस के लिए। और मुतकल्लिम के अंदर सिर्फ वाहिद है और जमा है, तस्निया मुतकल्लिम में नहीं है और ना तो मुज़क्कर मुअन्नस है। तो इसको आपको इस तरीके से ज़ुबानी याद करना है और ये रिदम के साथ याद करना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हुमा और हुमा दोनों कॉमन है, यानी मर्द के लिए भी है और औरत के लिए है। इसी तरीके से देखेंगे अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, यहाँ भी अंतुमा, अंतुमा कॉमन है, और अना, नहनो। तो ये कुल आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 10 5 5 10 11 12 13 14, ये 14 फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं
14 में से अगर हम इसको एक हटा दें, क्योंकि ये कॉमन है, और यहाँ से एक हटा दें तो कुल 12 फॉर्म्स बनते हैं। तो अरबी कायदे के एतबार से ये तीनों सबके 12 फॉर्म्स बनेंगे, लेकिन रिद्म बनी रहे तो 14 फॉर्म्स याद किए जाते हैं। वो कॉमन वाला भी पढ़ा जाता है बार बार। एक बार ये ज़ुबानी याद कर लेंगे तो सारी चीज़ों को इसी फॉर्म्स पर आना है। जैसे हम गर्दान जो पढ़ते हैं, जैसे फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालते, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना, कोई भी लफ्ज़ आएगा इसी रिद्म पर पढ़ा जाएगा। तो ये रिद्म आपको ज़ुबानी याद हो और जहन में बैठी रहे कि पहले 6 जो हैं वो थर्ड पर्सन है। अरबी वालों ने क्या किया है कि थर्ड पर्सन को पहले किया, फिर सेकंड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। अंग्रेज़ी वाले पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अरबी में जो गर्दान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो ये है कि पहले थर्ड पर्सन का, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। गायब थर्ड पर्सन, हाजिर सेकंड पर्सन और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। तो अरबी तसरीफ़ ऐसे रहेगी, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। फिर गायब में पहला 3 मुज़क्कर के लिए, फिर अगला 3 मुअन्नस के लिए, फिर हाजिर में पहले 3 मुज़क्कर, फिर अगला 3 मुअन्नस, और फर्स्ट पर्सन में मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं रहेगा। और यहाँ चूँकि वाहिद तस्निया जमा का भी है, तो देखिए हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब, हुमा तस्निया मुज़क्कर गायब, हुम जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद तस्निया जमा, तीनों मुज़क्कर का हो गया। फिर वाहिद तस्निया जमा, ये तीनों मुअन्नस के लिए हो गए। फिर आइए आप सेकंड पर्सन में, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये तीनों हो गए वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर के लिए। अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है, ये हो गए सेकंड पर्सन के लिए। अना, अनहनो, ये फर्स्ट पर्सन, और ये वाहिद के लिए, और ये जमा तस्निया सब के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस का इसमें चक्कर नहीं है। ये याद करना है। पेज ख़त्म हो जाए, भी याद के लिए देखिए, हादा, हादही, ज़ालिका, तिलका। हादा मतलब दिस, करीब की तरफ इशारा करने के लिए, और मुअन्नस के लिए हादही हो जाता है। ज़ालिका मतलब दैट, दूर की तरफ इशारा करने के लिए, और तिलका मतलब वो, मुअन्नस के लिए। तो यहाँ पर भी अब अंग्रेज़ी में एक ही लफ्ज़ दिस और दैट से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिस तो ये हो गया, लेकिन ये दिस जो है ये भी दिस है, लेकिन ये फीमेल के लिए हाजी हो गया। ये दैट का काम किया, लेकिन तिलका, दैट अभी अरबी में कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ दैट से तो दोनों का काम हो जाता है, दिस से दोनों हो जाता है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, लेकिन अरबी वाले अलग रखे हैं, हादा, हादही, ज़ालिका, तिलका। और फिर इसका भी जमा है, ये आगे अगले सबक में कल पढ़ाएंगे। तो फ़िलहाल अभी आपको इसमें सिर्फ कितने अल्फाज नए आए, एक तो अबसार आया नया, और एक अलबाब आया नया, और एक मुतमइन्ना, बकिया सब पढ़े हुए हैं। आपको ये ज़मीरों के रिद्म ज़ुबानी याद होना चाहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही तेज़ी से वो दिमाग में बैठा के, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, एकदम बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसको कम से कम 20 बार रटिए, ये रटना पड़ेगा, और ये रिद्म एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएगी तो बकिया जितनी भी तशरीफ़ात अरबी की आएंगी वो सब के सब इसी वज़न पर आएंगी। तो अब इसको कॉपी पे लिखिए और मश्क करिए इस तरीके से कि गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, फिर गायब में वाहिद तस्निया जमा, फिर हाजिर के अंदर वाहिद तस्निया जमा, फिर मुज़क्कर मुअन्नस। इस तरीके से ये रिद्म बनाइए, इसको याद करिए। ये सबक थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल क्या है, याद करना है, दिमाग में बिठाना है। और ये सबसे पहला बुनियादी ग्रामर है कि अरबी में कुल फॉर्म्स 14 रिद्म की वजह से हैं, वरना बेसिकली फॉर्म्स कुल 12 हैं। तो 12 फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं। अंग्रेज़ी में 3 ही फॉर्म हैं, संस्कृत में ज़्यादा हैं, फ़ारसी में 6 हैं, लेकिन अरबी में 14 हैं, और 12 हैं, लेकिन रिद्म बरकरार रखने के लिए 14 याद किए जाते हैं और 14 से पढ़े जाते हैं। यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये याद रहेगा तो आगे का बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा।